السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بدر کی لڑائی میں قیدیوں کی سمسیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں۔ اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری طاقت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ فلاں کو، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قریبی تھا، میرے حوالے کرے اور میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کرے، وہ اس کی گردن مارے، اور فلاں کو، جو حمزہ کا بھائی ہے، حمزہ کے حوالے کرے اور وہ اس کی گردن مار دے، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے لیے نرم کونا نہیں ہے اور یہ لوگ مشرکوں کے بڑے اور سردار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا گیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے، آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ معلوم ہوئی تو روؤں گا، اور نہ معلوم ہو سکی تو آپ لوگوں کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے لوگوں پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور اپنے ایک قریبی پیڑ کی اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس پیڑ سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا، اور اللہ نے یہ آیت اتاری، کسی نبی کے لیے صحیح نہیں کہ اس کے پاس قیدیاں ہو، یہاں تک کہ وہ اچھی دھرتی قریشی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی اور سے لکھی چیز پہلے نہ آ چکی ہوتی تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا، اور اللہ کی اور سے جو لکھا پہلا آ چکا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ یہ تھا، مشرکوں کو لڑائی میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ چونکہ اس لکھے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کو فدیہ قبول کرنے پر عذاب نہیں دیا گیا، بلکہ صرف ڈانٹا گیا، اور ڈانٹا بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اوپروکت آیت بعد میں اتری اور جو لکھا اللہ کی اور سے پہلے آ چکا تھا اس سے
तात्पर्य अल्लाह का यह फैसला है कि इस उम्मत के लिए गनीमत का माल हलाल है। बहरहाल चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की राय के मुताबिक मामला तय हो चुका था, इसलिए मुश्रिकों से फिदिया लिया गया। फिदिये की मात्रा 4000 और 3000 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक थी। मक्के के लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे, जबकि मदीना के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसलिए यह भी तय किया गया कि जिसके पास फिदिया ना हो वह मदीना के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। जब ये बच्चे अच्छी तरह सीख जाए तो यही उसका फिदिया होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई कैदियों पर एहसान भी फरमाया और उन्हें फिदिया लिए बगैर भी रिहा कर दिया। इस सूची में मुतल्लिब बिन हंतब, सौफी बिन अबी रिफाआ और अबू उज्जा जुमही के नाम आते हैं। आखिरी नाम को अगली लड़ाई में कैद और कत्ल किया गया। विस्तृत विवेचन आगे आ रहा है। आपने अपने दामाद अबुल आस को इस शर्त पर बिना फिदिये छोड़ दिया कि वह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की राह ना रोकेंगे। इसकी वजह यह हुई कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबुल आस के फिदिये में कुछ माल भेजा था, जिसमें एक हार भी था। यह हार हकीकत में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का था और जब उन्होंने हज़रत ज़ैनब को अबुल आस के पास विदा किया था तो यह हार उन्हें दे दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आपका दिल भर आया और अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु से इजाज़त चाही कि अबुल आस को छोड़ दे। सहाबा किराम ने इसे पूरी रजामंदी के साथ कबूल कर लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की राह छोड़ देंगे। चुनाचे हज़रत अबुल आस ने उनका रास्ता छोड़ दिया और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिजरत फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और एक अंसारी साहबा को भेज दिया कि तुम दोनों बत्न एजाज में रहना। जब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा तुम्हारे पास से गुजरे तो साथ ले आना। ये दोनों तशरीफ़ ले गए और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर मदीना वापस आए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की हिजरत की घटना बड़ी लंबी और दुखद है। कैदियों में सुहेल बिन अम्र भी था, जो बड़ा ज़ोरदार वक्ता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुहेल बिन अम्र के अगले 2 दांत तुड़वा दीजिए। उसकी ज़ुबान लिपट जाए करेगी और वह किसी जगह वक्ता बनकर आपके खिलाफ कभी खड़ा ना हो सकेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह विनती ठुकरा दी, क्योंकि यह अंग भंग की श्रेणी में आता है, जिस पर क़यामत के दिन अल्लाह की ओर से पकड़ का खतरा था। हज़रत साद बिन नौमान रज़ी अल्लाह अन्हु उम्रा करने के लिए निकले तो उन्हें अबू सुफियान ने कैद कर लिया। अबू सुफियान का बेटा अम्र भी बद्र की लड़ाई के कैदियों में था। चुनाचे अम्र को अबू सुफियान के हवाले कर दिया गया और उसने हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया। कुरान की समीक्षा। इसी लड़ाई के ताल्लुक से सूरह अनफाल उतरी, जो वास्तव में उस लड़ाई पर अल्लाह की एक समीक्षा है। अगर यह अर्थ निरूपण सही हो और यह समीक्षा बादशाहों और कमांडरों आदि की विजयी समीक्षाओं से बिल्कुल ही अलग है। इस समीक्षा की कुछ बातें
थोड़े में इस तरह है। अल्लाह ने सबसे पहले मुसलमानों का ध्यान उन कोताहियों और नैतिक त्रुटियों की ओर खींचा जो उनमें कुछ बाकी रह गई थी और जिनमें से कुछ इस मौके पर जाहिर हुई थी। इस तवज्जो देने का मकसद यह था कि मुसलमान अपने आप को इन कमज़ोरियों से पाक साफ करके अपने को पूर्ण कर ले। इसके बाद इस जीत में अल्लाह की जो तायीद और गैबी मदद शामिल थी उसका उल्लेख किया। इससे अभिप्राय यह था कि मुसलमान अपनी बहादुरी के धोखे में ना आ जाए, जिनके नतीजे में तबीयतों में दंभ और अभिमान पैदा हो जाता है, बल्कि वे अल्लाह पर भरोसा करें और उसके और पैगंबरों के आज्ञाकारी बने रहे। फिर उन उच्च उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भयानक और खूनी लड़ाई में कदम रखा था, और इसी सिलसिले में उस चरित्र व आचरण की निशानदेही की गई है जो लड़ाइयों में जीत की वजह बनते हैं। फिर मुशरिकों और मुनाफिकों को और यहूदियों और लड़ाई के कैदियों को संबोधित करके ऐसा जोरदार उपदेश दिया गया है कि वे सत्य के सामने झुक जाए और उसके पाबंद बन जाए। इसके बाद मुसलमानों को गनीमत के माल के मामले में संबोधित करते हुए उन्हें इस समस्या के तमाम मौलिक नियम और सिद्धांत बताए गए हैं। फिर इस मरहले पर इस्लामी दावत को लड़ाई और समझौते के जिन कानूनों की ज़रूरत थी उनको स्पष्ट किया गया ताकि मुसलमानों की लड़ाई और अज्ञानियों की लड़ाई में अंतर किया जा सके और चरित्र व आचरण के मैदान में मुसलमानों को श्रेष्ठता मिली रहे और दुनिया अच्छी तरह जान ले कि इस्लाम मात्र एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह जिन नियमों और सिद्धांतों की दावत देता है उनके मुताबिक अपने मानने वालों की व्यवहारिक ट्रेनिंग भी करता है। फिर इस्लामी राज्य के नियमों की कई धाराएं बयान की गई हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि इस्लामी राज्य की सीमाओं में बसने वाले मुसलमानों और उस सीमा से बाहर रहने वाले मुसलमानों में क्या अंतर है। भिन्न भिन्न घटनाएं सन 2 हिजरी में रमज़ान का रोज़ा और सदकाए फित्र फ़र्ज किया गया और ज़कात के विभिन्न निसाबों का निर्धारण किया गया। सदकाए फित्र के फ़र्ज होने और ज़कात के निसाब के निर्धारण से उस बोझ और परिश्रम में बड़ी कमी आ गई जिससे धनहीन मुहाजिरों की एक बड़ी तादाद दो चार थी, क्योंकि वह रोज़ी की चाह में ज़मीन में दौड़ धूप की संभावनाओं से वंचित थी। फिर बड़ा ही सुंदर संयोग यह था कि मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में पहली ईद जो मनाई वह शव्वाल सन 2 हिजरी की ईद थी, जो बद्र की लड़ाई की खुली जीत के बाद पेश आई। कितनी प्रिय थी वह मुबारक ईद जिसका सौभाग्य अल्लाह ने मुसलमानों के सर पर विजय का मुकुट रखने के बाद दिया था, और कितना ईमान बढ़ाने वाला था ईद का दृश्य जिसे मुसलमानों ने अपने घरों से निकलकर अल्लाहु अकबर की आवाज़ ऊंची करते हुए मैदान में जाकर अदा किया था। उस वक्त हालात यह थी कि मुसलमानों के दिल अल्लाह की दी हुई नेमतों और उसकी दी हुई तायीद की वजह से उसकी रहमत और रजामंदी के शौक़ से भरे पूरे और उसकी ओर चाहत की भावनाओं से ओतप्रोत थे, और उनके माथे उनका शुक्र अदा करने के लिए
جھکے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس نعمت کا الیکھ اس آیت میں کیا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔